یہ امرتسر ہے۔ لاہور سے چل کر اٹاری سے گزر کر میں امرتسر پہنچا تو خود کو بالکل اجنبی دیس میں پایا، نہ کوئی صورت آشنا، نہ نام آشنا اور نہ کوئی آواز آشنا۔ امرتسر اسٹیشن پہنچتے ہی مجھے اگلے روز آگے جانے کی فکر تھی۔ سنا یہ تھا کہ ہندوستان کی ریل گاڑیوں پر پہلے سے نشستیں محفوظ کرانا ضروری ہے اور لوگ یہ کام ہفتوں پہلے کرا لیتے ہیں۔ مجھے تو اگلے ہی روز جانا تھا، ڈر تھا کہ شاید نشست نہ ملے۔ وہ تو بعد میں ملتی، مجھے تو اسٹیشن کی عمارت میں وہ دفتر اور وہ کھڑکی ہی نہیں ملی جس کے راستے ٹکٹ خریدا جائے۔ اسٹیشن کے سامنے کا سارا علاقہ دیکھ ڈالا، ریزرویشن آفس کہیں نہ تھا۔ معلومات کی کھڑکی پر گیا، وہ خالی پڑی تھی۔ پولیس نے ایک بڑا سا کاؤنٹر بنا رکھا تھا جس پر لکھا تھا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں، وہ بھی خالی پڑا تھا، اور کرسیوں اور بینچوں سے محروم اسٹیشن میں تھکے ہارے مسافر اس کاؤنٹر پہ چڑھے بیٹھے تھے۔ بڑی مشکل سے معلوم ہوا کہ ریزرویشن آفس اسٹیشن کے پچھواڑے ہے۔ اپنا وزنی تھیلا اٹھائے اٹھائے میں پل پر چڑھا اور پار اترا، تب وہ آفس ملا۔ بہت سی کھڑکیوں پر بہت سی قطاریں بنی ہوئی تھیں اور بے شمار لوگ ریزرویشن کی درخواست کے فارم بھر رہے تھے اور اپنی نشستیں محفوظ کرا رہے تھے۔ میں ٹھہرا تحقیق کا آدمی، بڑی تحقیق کی، بڑے بورڈ پڑھے، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کس ٹرین پر بیٹھ کر کدھر جانا ہے۔ مقامی لوگ دھڑا دھڑ فارم بھر رہے تھے۔ 3074 میں 2 سیٹیں دے دو، 3006 میں 1 برتھ چاہیے، 5210 میں 4 سیٹیں مل جائیں گی کیا؟ پنجاب میل میں سیٹیں ہیں یا نہیں؟ ہاوڑا میل فل ہے تو چلو ہاوڑا ایکسپریس میں 4 سیٹیں دے دو۔ کچھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی۔ میں اگر چھوٹا سا بچہ ہوتا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ بڑی ہمت کر کے میں انکوائری کی کھڑکی پر گیا جو ہندوستان میں پوچھ تاچھ کہلاتی ہے۔ میں نے کہا کہ سیدھا ولایت سے آ رہا ہوں اور رامپور جانا چاہتا ہوں، مجھے ان ریل گاڑیوں کے بارے میں ذرا سا بھی علم نہیں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ وہ جو کھڑکی کے اندر بیٹھا تھا وہ تو فرشتہ نکلا۔ اس نے کہا کہ ہاوڑا میل سے چلے جاؤ۔ ہندوستان میں چلے جائیے کہنے کا رواج نہیں رہا، ہاوڑا میل سے چلے جاؤ۔ فارم پر ہاوڑا میل نہ لکھنا بلکہ 3006 لکھنا، اور اس لمبی لائن میں نہ لگنا، بلکہ یہ جو عورتوں اور بوڑھوں کی کھڑکی ہے اس میں فارم دے دو۔ میں نے فارم بھرا اور عورتوں اور بوڑھوں کی کھڑکی پہ جا پہنچا۔ وہاں دوسرا فرشتہ بیٹھا تھا۔ اس نے میری جنس یا عمر کی تحقیق کیے بغیر میرا فارم لے لیا۔ اب اس نے کمپیوٹر پر انگلیاں دوڑائیں۔ اسکرین پر بہت کچھ لکھا ہوا آ گیا۔ کہنے لگا ویٹ لسٹ ہے لیکن نمبر 1 ہے، سیٹ مل جائے گی۔ ویٹ لسٹ کا مطلب بظاہر تو یہ ہے کہ سیٹ ملنا یقینی نہیں۔ ابھی میرے اوسان خطا ہوا ہی چاہتے تھے کہ قطار میں میرے پیچھے کھڑی ہوئی لڑکیوں نے کہا ہاں ہاں سیٹ مل جائے گی، نو پرابلم۔ بکنگ کلرک نے کہا کل پہلے یہاں آ جانا، میں اوکے کر دوں گا۔ میں نے ٹکٹ لے لیا، اسے مٹھی میں بھینچ کر سینے سے لگا لیا اور میلے میں کھو جانے والے لڑکے کی طرح دوبارہ پل کے اوپر چڑھنے لگا۔ اسٹیشن سے باہر نکلا تو غضب کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ دعا مانگ رہا تھا کہ قریب کوئی پنجابی ڈھابا مل جائے۔ سامنے دیکھا تو ایک چھوڑ 2 ڈھابے نظر آئے، جگجیت کا ڈھابا اور موہن کا ڈھابا۔ میں نے ایک دکاندار سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کروں۔ اس نے کہا جگجیت کے ہاں چلے جاؤ۔ 8 روپے میں دنیا کی سب سے لذیذ سبزی اور دال اور سرخ روٹی کھا کر میں اپنے ہوٹل میں پہنچا اور سو گیا، اور ساری رات خواب میں دیکھا کہ لاہور اور اٹاری کے اسٹیشنوں کے موٹے موٹے افسر جن کی وردی میں پھول لگے ہوئے ہیں مجھ سے رشوت مانگ رہے ہیں اور مجھے گرفتار کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اگلی شام یہ خواب سچ ثابت ہوتے ہوتے رہ جائے گا۔ گاڑی کی روانگی اگلی شام 6:15 بجے تھی۔ میں 4:15 بجے ہی اسٹیشن پہنچ گیا تاکہ یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ میری سیٹ محفوظ ہے۔ بکنگ کلرک مجھے پہچان گیا اور اس نے کمپیوٹر میں دیکھ کر لمحہ بھر میں مجھے میری نشست کا نمبر بتا دیا۔ ابھی میں ہندوستانی ریلوے کے کمپیوٹر کی مستعدی پر داد دے ہی رہا تھا کہ ایک صاحب نے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام NK اروڑا ہے اور میں بکنگ ایجنٹ ہوں، کمیشن لے کر ہر قسم کی نشست ریزرو کرا سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اروڑا صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ کل جب میں یہاں خوار ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ اس کے بعد یہ بتائیے کہ ہندوستانی ریلوے میں یہ کمپیوٹر کب سے کام کر رہا ہے؟
कंप्यूटर यहाँ 2 साल हो गए करीबन। 2 साल हो गए। कैसा चल रहा है, आपका क्या ख्याल? यहाँ तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अमृतसर में बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ स्टाफ बहुत अच्छा है, चीफ साहब बहुत अच्छे हैं, एटीएस साहब बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं, हर आदमी को कोऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर में कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, वो प्रॉब्लम यहाँ भी है? ऑल इंडिया में प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि अरोड़ा साहब, प्लेटफार्मों पर इतने ज़्यादा मुसाफिर जमा हैं कि 2-4 और आ गए तो मुसाफिर चलती ट्रेनों के आगे टपाटप गिरने लगेंगे। इतने मुसाफिर आपकी रेलगाड़ियों में कहाँ समाएंगे? कहने लगे, अक्सर देखिए जी, पब्लिक हमारे हिंदुस्तान में 1 मिनट में 400 बच्चा पैदा हो रहा है और 400 ही बड़ा हो रहा है, तो इस हिसाब से गाड़ियों का हालत बुरी है। इस कंडीशन में पब्लिक के लिए बहुत बुरा हाल है, गाड़ियाँ बढ़नी चाहिए। खैर, अब मेरे रात के ख्वाब का किस्सा सुनिए, जो अगर सच्चा होता तो मैं अमृतसर की किसी हवालात में पड़ा होता। मैं हावड़ा मेल पर सवार होने प्लेटफार्म पर पहुंचा तो 2 बातें पता चली। एक तो ये कि गाड़ी 3 घंटे लेट है, दूसरा ये कि प्लेटफार्म का ये हाल है कि आदमी पर आदमी सवार है। मसलन ये कि प्लेटफार्म पर 2000 मुसाफिर आ गए हैं, जबकि उनके बैठने के लिए सिर्फ 10-12 बेंचें डाली गई हैं। अब मसला ये था कि ये 3 घंटे कहाँ बैठ के गुजारे जाएं। मुझे पुलिस का वो बड़ा सा काउंटर याद आया जिस पर लिखा था कि हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। मुश्किल ये थी कि वो मदद करने वाला अमला खुद गैर हाजिर था और थके हुए मुसाफिर उस काउंटर को बेंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने सोचा कि चलकर उसी को देखा जाए, शायद कोई कोना खाली मिल जाए। अब जो मैं पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक कोना क्या, पूरा काउंटर खाली पड़ा है। कुछ सहमे हुए मुसाफिर एक तरफ और कुछ सिमटे हुए मुसाफिर दूसरी तरफ खड़े हैं, लेकिन काउंटर पर अपना वजूद टिकाने से हर एक गुरेज कर रहा है। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, लपक कर गया, अपना थैला फर्श पर रखा और खुद काउंटर पर चढ़ के बैठ गया। मजमे ने मुझे यूं देखा जैसे वो मुझ पर तरस खा रहा हो और उसे मुझ पर रहम आ रहा हो। मैंने देखा कि उसी मजमे के अंदर से एक मोटा सा पुलिस अफसर निकला। उसके बाजू पर लगे हुए फूल तो मैं शुमार न कर सका, क्योंकि मेरी तवज्जो उसके मोटे से पेट में धसी हुई भैंस के चमड़े की पेटी पे लगी हुई थी। और रह गया उसका हुलिया तो क्या बयान करूं। हिंदुस्तानी फिल्मों में आपने वो पुलिस अफसर ज़रूर देखा होगा जो शहर के सबसे बड़े स्मगलर, मनशियात फरोश या गरीबों का खून चूसने वाले सनतकार का ख़ास आदमी होता है। बस ये अफसर वैसा ही था। मेरे करीब आकर उसी के मुकालमों के अंदाज में बोला, काउंटर पर क्यों बैठे हो? मैंने झट जवाब दिया, इसलिए कि काउंटर पर आपके जिस अमले को बैठना चाहिए था वो गायब है, काउंटर खाली पड़ा है, इसलिए थके हुए मुसाफिर इस पे बैठ रहे हैं। ऐसे मौके पर वो फिल्म वाला अफसर जिस तरह कहता क्या, इस पुलिस अफसर ने भी बिल्कुल उसी तरह कहा क्या, और अपनी पेटी से हथकड़ी खोलने लगा। वैसे पंजाब के इस इलाके में इल्हाम के किस्से बहुत सुने हैं। मेरे कान में भी किसी ने कहा, जाबिर हाकिम के आगे कलमा हक कहने वाले, थैला उठा और भाग। अब हावड़ा मेल का इंतज़ार था। ये गाड़ी कलकत्ते से आती है, फिर इसे धोया जाता है, इसकी सफाई होती है और 3 घंटे बाद ये वापस जाती है। गाड़ी 3 घंटे लेट आई और इससे पहले कि ये सफाई के लिए यार्ड में जाती, सैकड़ों मुसाफिरों ने याहू का नारा लगाया और उसके 2 जनरल डिब्बों में उसी वक्त खचाखच भर गए। हर गाड़ी में ये 2 डिब्बे ऐसे होते हैं जिनमें नशिस्तें पहले से महफूज कराना ज़रूरी नहीं। फिर ये सारे मुसाफिर गाड़ी समेत यार्ड में गए और जब 3 घंटे ताख़ीर से ट्रेन वापस आके प्लेटफॉर्म पे लगी तो ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि इन 2 डिब्बों में ठुसे हुए मुसाफिर सांस कैसे ले रहे होंगे। मुझे एयर कंडीशन स्लीपर में अपनी नशिस्त बआसानी मिल गई। कल तक जिस गाड़ी में मेरी नशिस्त वेट लिस्ट पर थी, आज उसकी ज़्यादातर बर्थें खाली पड़ी थीं। मैं 4 बर्थों के अपने खाने में अकेला था। ट्रेन चलने में अभी कुछ देर थी। अपना सामान करीने से चुनकर मैं अपने डिब्बे का जायज़ा लेने लगा। देखा कि एक बर्थ पर एक बुज़ुर्ग अपना बिस्तर जमा रहे हैं। देखने से यूँ लगा कि अगर ये कुरैशी साहब नहीं तो कोई सिद्दीकी साहब या फारूकी साहब ज़रूर होंगे। माफ़ कीजिए, आपका नाम क्या है? बोले, आरबी सक्सेना। हमने हाथ मिलाए, दिल खुद ही मिल गए। सक्सेना साहब बहुत खुश अखलाक, मिलनसार और शफीक निकले। नहायत उम्दा उर्दू में
नहायत शगुफ्ता और दिलचस्प बातें कर रहे थे। पता चला कि अब 72 साल के हैं और 40 साल तक रेलवे के मुलाजिम रह चुके हैं। कैसे भर्ती हुए और तरक्की करते करते कहाँ तक पहुँचे, लीजिए सक्सेना साहब की ज़बानी सुनिए। हमारी ट्रेन चली जा रही थी और बातें भी जारी थीं। मैंने पूछा कि सक्सेना साहब, आपने कब ये रेलवे की मुलाजमत इख्तियार की थी? 11 दिसंबर सन 46। और शुरू में क्या किस तरह की मुलाजमत थी? 18 रुपए का नौकर हुआ था रेलवे में। नहीं, बिल्कुल 18 रुपए का नौकर हुआ था भाई। मैंने कहा कि रेलवे की मुलाजमत क्या किसी ख़ास वजह से इख्तियार करनी पड़ी? क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी और मेरी मदर थी, 2 भैये थे, 2 बहनें शादी को थी। मैं पढ़ा भी नहीं, हालांकि पढ़ रहा था, मुझे मजबूरन 8th क्लास से पढ़ना छोड़ना पड़ा। तो एक मेरे मित्र मिल गए, दोस्त, उन्होंने मुझसे कहा, अरे यार तू परेशान हो रहा है, ये वो फलान ढिमका, तू चल मैं रेलवे में करा दूँ। तो उन्होंने मुझे रेलवे में क्लीनर करा दिया। मैंने कहा कि सक्सेना साहब, क्या ये सही है कि उस वक्त रेलवे के मुलाजिम, खुसूसन इंजन के ड्राइवर, ज़्यादातर अनपढ़ होते थे? उस ज़माने में रेल में पढ़ा लिखा आदमी, ख़ास तौर से ड्राइवर तबके में, कोई नहीं जाना चाहता है। और ख़ास तौर से मोहम्मदन लोग जाया करते थे। मैंने सुना बिल्कुल अनपढ़ होते थे। हाँ, अनपढ़ होते थे, ज़्यादातर अनपढ़ होते थे। ये बिल्कुल सही है आपकी। फिर मैंने आरबी सक्सेना साहब से पूछा कि आपने क्लीनर की हैसियत से मुलाजमत शुरू की, ये सिलसिला कितने अरसे चला? कोई 1.5 वर्ष चला। फिर सेकंड फायरमैन हुए, फिर गाड़ियाँ चलाई अंग्रेज़ों। उस ज़माने में अंग्रेज़ भी थे, वो भी फिर हुआ, अंग्रेज़ भी जाने लगे, फिर हिंदुस्तानी आ गए, हम शंटर हो गए, फिर ड्राइवर हो गए। मैंने पूछा कि उस वक्त रेलवे के ड्राइवर की इज्जत थी या नहीं? आम लोग और खुसूसन रेलवे के हुक्काम ड्राइवर को इज्जत की निगाह से देखते थे? उस ज़माने में, हमारे ज़माने में क्या होता था, कोई गड़बड़ी होगी, चलते में गाड़ी चल रही है, कोई गड़बड़ कुछ भी होगी, तो उसमें ये होता था कि उन्हें अफसर ने बुलाया, गार्ड को बुलाया, टीटी को बुलाया, जो कोई थे सबको बुला लिया, ट्रैफिक स्टाफ को बुलाया उन्होंने, और उसके बाद में उन्हें ये मामला तय नहीं हो रहा, सारे बेईमान है, ड्राइवर को लाओ। ये अंग्रेजों की परंपरा थी कि ड्राइवर तो सो नहीं सकता, सोने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो अनशन बोल रहे हैं, ड्राइवर को लाओ। भाई वो फलाना स्टेशन में क्या हुआ है, उन्हें साहब हमें ये ऐसे बातचीत, कहानी खत्म। इतना बिलीव करते, जो ड्राइवर ने कह दिया वो सही है। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने पूछा कि करीब 40 साल की रेलवे की मुलाजमत के बाद मेरा ख्याल है कि आप अब तक थकन महसूस करते होंगे? थका तो मैं नहीं था, और थकान तो मेरी यूँ दूर हो गई कि एक मजदूर 18 रुपये का नौकर, आज मैं 3,500 रुपये कमा रहा हूँ, थकावट कहाँ है? अब मैंने आरबी सक्सेना साहब से पूछा कि रेलवे इंजन के ड्राइवर की घरेलू ज़िंदगी कैसी होती है? आप लंबे लंबे सफ़र पर जाते होंगे, बीवी बच्चे तो बहुत याद आते होंगे। जब इंजन पर चढ़ गए और रेल चलाई, किसका बच्चा किसकी बहू, ये कुछ नहीं है। जब लौट के चले नियर स्टेशन, जहाँ आप रामपुर जा रहे हैं, तो याद आता था, यार हमारा गुड्डा तो ऐसा है, गुड़िया यूँ है, ये करेंगे, फलाना करेंगे, और तू क्या लेके, तब दिमाग घूमता था। यानी 17 किलोमीटर में ये दिमाग घूमता था। मैंने कहा कि मैंने तो ये सुना है कि बेचारे ड्राइवरों को सोते से जगा लिया जाता है कि तुम्हें ट्रेन लेके जाना है। बीवी बच्चे तो उससे खुश नहीं होते होंगे। या फर्ज कीजिए कि आपको बुखार आ गया। बुखार आ रहा है, बुखार आ गया, घरवाली मना कर रही है, क्या करो, मरोगे क्या, ये चुप रहे, रोटी कौन खिलाए, अरे भाई जाएंगे 4 मिलेंगे, ये वो। वाकई बुखार आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोले। जब चढ़ गए, तुमसे मिले, आपसे मिले, आपसे मिले, उनसे मिले, हाजी सब जानने वाले सब बुखार साला। लेकिन बीवियों को तो बड़ी शिकायत होती होगी। नहीं, कभी नहीं। कभी मेरी वाइफ
मेरे साथ 50 साल रही, अभी मरी हैं, लेकिन कभी उन्होंने उनको कोई शिकायत